اس کے کمرے میں ہر جگہ انسانی بال پڑے ہوئے تھے۔ پورے کمرے میں کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں تھی جہاں بال نہ ہوں۔ کمرے کا پورا فرش، دیواریں سب کالے سیاہ بالوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ وہ ابھی چلانے میں ہی مصروف تھی کہ جب فرش پر پڑے ہوئے بالوں میں حرکت ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ایک خوفناک شکل اختیار کر لی۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے کالے جادو کی خوفناک دنیا، ایپیسوڈ نمبر 9۔ نہیں، بات تو نہیں ہوئی۔ آخری بار اسے اسی دن ملی تھی، اس کے بعد سے میں نے بھی اسے کہیں نہیں دیکھا۔ ہاں، لیکن اس کی بہن کے بارے میں سنا ہے، آج کل وہ پاکستان میں ہی ہوتی ہے، سیکرٹریس ہے شاید وہ، نمرا نے ذہن پر زور دیتے ہوئے بتایا۔ اچھا، اگر تمہارا کوئی رابطہ ہو اس سے تو بتانا مجھے، ابھی میں چلتا ہوں۔ حوریہ بھی گھر پر اکیلی ہے، ہاشم نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، نمرا نے اسبات میں سر ہلایا۔ ہاشم اگلی ملاقات کا وعدہ کر کے وہاں سے چلا آیا۔ حوریہ گھر پر اکیلی تھی۔ ہاشم اور صبا بیگم اب تک ہسپتال سے واپس نہیں آئے تھے۔ ہاشم کا دیا تعویذ اب اس کے گلے کی زینت بن چکا تھا۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ حوریہ اپنے کمرے میں آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے میں گہرا سکوت طاری تھا۔ جب پانی گرنے کی آواز نے اس سکوت کو توڑا اور حوریہ نے آنکھیں کھولیں، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور بیڈ سے اٹھی اور باتھ روم کے اندر چلی گئی۔ نل تو بند ہے، پھر وہ آواز۔ باتھ روم کے تمام چیک کرنے کے بعد حوریہ نے من ہی من میں سوچا اور پھر باتھ روم کا دروازہ بند کرتی ہوئی نیچے چلی آئی۔ حوریہ نے نیچے آ کر پانی پینے کے ارادے سے قدم کچن کی سمت بڑھائے۔ اس کا ذہن اسی آواز پر اٹکا ہوا تھا۔ اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور پانی گلاس میں انڈیلا۔ وہ پانی پینے ہی لگی تھی جب اس کی نظر گلاس پر پڑی۔ گلاس پانی کی بجائے خون سے بھرا ہوا تھا۔ اوہ! حوریہ نے ڈرتے ہوئے جھٹکے سے گلاس دور پھینکا۔ گلاس فرش پر جا کر ٹوٹ گیا۔ حوریہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے فرش کو دیکھنے لگی، جہاں ایک قطرہ بھی خون کا نہیں تھا، بلکہ ٹوٹے ہوئے گلاس کے ٹکڑے اور پانی پڑا ہوا تھا۔ اس نے تھوک نگلا اور نیچے بیٹھ کر ٹوٹے گلاس کے ٹکڑے سمیٹنے لگی۔ کانچ سمیٹتے وقت ایک کانچ اس کی انگلی میں چبھ گیا اور انگلی سے ننھی سی خون کی بوند نمودار ہوئی۔ حوریہ نے کانچ کچرے میں پھینکے اور پانی صاف کرنے لگی۔ پانی صاف کر کے اس نے فریج سے پانی کی ایک بوتل نکالی اور کچن سے باہر آ گئی۔ عریشہ کا خیال آتے ہی اس نے ہاشم کا نمبر ڈائل کیا، لیکن ہاشم کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ اب کیا کروں؟ کہاں رہ گئے ہاشم آپ؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بڑبڑائی۔ میں دانش کو کال کرتی ہوں۔ دانش کا خیال آتے ہی اس نے دانش کا نمبر ڈائل کیا، لیکن اس کا نمبر مسلسل مصروف بتا رہا تھا۔ حوریہ نے گہری سانس لی۔ اب انتظار کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ ابھی وہ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے ٹی وی آن کرنے کا سوچ ہی رہی تھی جب بیل بجی۔ لگتا ہے کہ ہاشم آ گئے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ حوریہ صوفے سے اٹھتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ ہاشم، آپ اتنی دیر؟ حوریہ کا جملہ اس کے منہ میں ہی رہ گیا۔ سامنے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہاشم! حوریہ نے دروازے سے باہر جھانکا، لیکن وہاں سچ میں کوئی نہیں تھا۔ وہ یکدم خوف زدہ ہو گئی۔ حوریہ نے تھوک نگلا اور لرزتے دل کے ساتھ واپس لاؤنج کی طرف قدم بڑھا دیے۔ لاؤنج کے قریب پہنچ کر اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ لاؤنج کی لائٹ آف تھی اور اندر سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی۔ حوریہ نے آگے بڑھ کر لاؤنج میں جھانکا تو ٹی وی پر کوئی ڈرونی فلم چل رہی تھی، جس میں ایک بچی ٹیبل کے نیچے چھپی ہوئی تھی اور ایک خوفناک شکل کا آدمی موم بتی لیے اسے آوازیں لگاتا ہوا پورے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا۔ اس آدمی کی شکل اس قدر خوفناک تھی کہ حوریہ بھی خوف زدہ ہو گئی۔ وہ پہلے ہی بہت ڈری ہوئی تھی اور اب یہ سب دیکھ کر اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ لاؤنج میں قدم بھی رکھے۔ ایک اور بات جو اس کو پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ جب ٹی وی اس نے آن نہیں کی تو پھر کس نے کی؟
वो अंदर जाने की बजाय वापस बाहर की जानब भागी। हुरिया अभी दरवाजे तक ही पहुंची थी जब एक खौफनाक कहका उसके कानों में गूंजा। हुरिया ने तेजी से दरवाजा खोला और उससे भी ज्यादा तेजी से बाहर निकल गई। हुरिया बाहर आकर लान में चक्कर काटने लगी। कहकों की आवाज अभी भी उसे अपने कानों में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। लान और लाउंज के दरमियान एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था जिससे आर पार वाज़े देखा जा सकता था। खुद पर किसी नजरें महसूस करते हुए हुरिया अचानक से रुक गई। फिर उसने आहिस्ता से गर्दन मोड़कर अपने बाएं जानब लाउंज की तरफ देखा तो उसे यूं लगा जैसे लाउंज के सोफे पर कोई बैठा हुआ है और सोफे पर कुनी रखकर टिकटकी बांधे उसे देख रहा है। लाउंज में अंधेरा होने की वजह से वो वाज़े तौर पर उन्हें देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी दूर वो चमकती हुई आंखें उसकी वहां मौजूदगी का बखूबी एहसास दिला रही थी और हुरिया के लिए ये बात ही खौफजदा होने के लिए काफ़ी थी कि अंदर मौजूद शय का इंसानी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। उसे देखकर हुरिया की रीढ़ की हड्डी में एक खौफ की लहर सरायत कर गई। बेइख्तियार उसके लबों ने हरकत की और उसने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। हुरिया की नज़र मुसलसल सोफे पर बैठे उस शख्स पर थी जिसकी आंखें अब खून की मानद सुर्ख हो चुकी थी। हुरिया ने अपनी आवाज और भी बुलंद कर ली। सामने बैठा शख्स अब गायब हो चुका था, लेकिन हुरिया मुसलसल आयतल कुर्सी का विर्द जारी रखे हुए थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं ऐसा ना हो वो खामोश हो और जिन फिर से आ जाए। हुरिया रोते हुए मुसलसल विर्द जारी रखे हुए थी जब हाशिम की गाड़ी की आवाज आई और वो तेजी से दरवाजे की जानब भागी और दरवाजा खोलने लगी। सॉरी यार, थोड़ी देर हो गई, हाशिम कार से निकलता हुआ बोला। कोई बात नहीं, उसने मुस्कुराने की कोशिश की। उसे देखकर उसकी थकावट का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता था, इसलिए फिलहाल उसने हाशिम को आज के होने वाले वाक़े के बारे में बताने का इरादा तर्क कर दिया क्योंकि वो उसे मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी। आप लोग फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ, हुरिया ने सबा बेगम को देखते हुए कहा। ठीक है बेटा, वो मुस्कुराती हुई अंदर बढ़ गई। हुरिया और हाशिम भी उनके पीछे अंदर की सिमत बढ़ गए। अरीशा कैसी है अब? खाने से फारग होकर वो दोनों कमरे में आए तो हुरिया ने पूछा। अल्लाह का शुक्र है, वक़्त पर अल्लाह के किसी नेक बंदे ने अस्पताल पहुंचा दिया था, इसलिए काफ़ी बचत हो गई। डॉक्टर का कहना था कि अगर थोड़ी देर हो जाती तो शायद वो कुछ नहीं कर सकते थे। हाशिम ने मोबाइल मेज़ पर रखते हुए उसे तफसील से आगाह किया। अल्लाह भला करे उस इंसान का, हुरिया ने दिल से दुआ दी। आमीन। हाशिम ने मेज़ से एक शापर उठाई जो आते वक्त अपने साथ लाया था। हाशिम, आपसे एक बात पूछनी थी, हुरिया अपने बालों में कीचड़ लगाती हुई बोली। क्या? हाशिम ने सर उठाया। वो तावीज़ आपको किसने दिया? हुरिया ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। ये जानना ज़रूरी नहीं कि किससे लाया था, ज़रूरी ये है कि तुम जल्द अज जल्द इस कफ़ियत से बाहर निकल आओ जिसमें तुम मुब्तला हो। उस तावीज़ को खुद से दूर मत करना चाहिए, कोई कुछ भी कहे, हाशिम ने संजीदगी से कहा। लेकिन फिर भी हुरिया का दिल मुतमिन नहीं हुआ। इसको छोड़ो, इधर आओ, उसने बात को टालने वाले अंदाज में कहा। हुरिया छोटे छोटे कदम उठाती हुई उसके बराबर में जाकर बैठ गई। हाथ दो अपना, हाशिम ने पैकेट से चूड़ियां निकालते हुए उसके सामने अपना हाथ फैलाया। हुरिया ने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। हाशिम ने मुस्कुराते हुए लाल कांच की चूड़ियों को उसकी कलाई की जीनत बना दिया। उसके सफ़ेद दूधिया कलाइयों में लाल रंग की कांच की चूड़ियां खूब जच रही थी। हाशिम, ये बहुत प्यारी हैं, हुरिया खुशी से बोली। जब से तुम यहाँ आई हो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सका, अभी बस रास्ते में ये देखी तो तुम्हारा ख्याल आ गया। हाशिम ने उसके दोनों हाथ अपने हाथ में ले लिए। शुक्रिया, हुरिया दिल से मुस्कुराई। हमने अपनी शादी को लेकर जैसे ख्वाब सजाए थे वो तो पूरे ना हो सके, लेकिन हमारे आने वाली ज़िंदगी बहुत खुशगवार होगी, मैं वादा करता हूँ तुमसे। तुम्हें वो तमाम खुशियाँ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। खुद को कभी भी अकेला मत समझना, तुम जब भी मुझे आवाज़ दोगी मुझे अपने साथ खड़ा पाओगी। हाशिम ने बारी बारी उसके हाथ चूमे। हुरिया एक पल को अपनी तमाम दुख, तमाम परेशानियां भूल चुकी थी।
याद था तो बस वो शख्स जो उसके सामने बैठा उसे ये बता रहा था कि वो उसके लिए कितनी अहम है। हुरिया कॉल अटेंड करो। अरीशा मुसलसल उसे कॉल कर रही थी मगर उसका नंबर नहीं लग रहा था। आखिरकार थक हार कर उसने मोबाइल साइड में रख दिया। मुझे जल्द अज जल्द हुरिया को सब कुछ बताना होगा और इस मामले की तह तक पहुंचना होगा कि आखिर हुरिया के साथ उसकी ऐसी क्या दुश्मनी है जो वो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए इस हद तक चली गई है, अरीशा ने दिल में कहा। कुछ देर वो इसी बारे में सोचती रही और सोचते सोचते कब उसकी आंख लगी उसे इल्म नहीं हो सका। अरीशा की नींद अभी कच्ची थी जब उसे अपनी गर्दन पर किसी का लमस महसूस हुआ और उसने पट से आंखें खोल दी। सामने के मंजर ने उसके असाब ढीले कर दिए। वो आतिश जिन अपने मखसूस हिलिये में उसके ऊपर बैठा उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा था। अरीशा ने उसका हाथ अपनी गर्दन से हटाने की कोशिश की लेकिन उसकी गिरफ्त काफी मजबूत थी। वो साथ साथ कुछ बड़बड़ा भी रहा था मगर अरीशा उसकी बात समझने से कासर थी। अरीशा ने दिल ही दिल में अल्लाह को मदद के लिए पुकारने लगी और साथ ही साथ अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल करते हुए उसके हाथों को हटाने की कोशिश करने लगी। उसकी गिरफ्त कुछ ढीली हुई तो अरीशा के मुंह से बेसाख्ता एक लफ्ज निकला, या अल्लाह। बेशक अल्लाह के नाम में बड़ी ताकत होती है और जब सच्चे दिल से उसका बंदा उसे याद करे तो वो पूरी तरह से उसकी तरफ मतवज्जा हो जाता है। उसके एक लफ्ज ने उसकी गिरफ्त को और कमजोर कर दिया। अरीशा ने अब लंबी लंबी सांसें लेते हुए तेजी से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की। वो अब से डरते हुए उससे दूर हो रहा था। अरीशा उठकर बैठ गई और अब वो अरीशा को गुस्से से घूरता हुआ कमरे की खिड़की की जानब जाने लगा और सुर्ख अंगारा होती आंखें अरीशा पर मरकूज किया हुए हवा में तहलील हो गया। या अल्लाह, अरीशा ने रोते हुए अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया। ना जाने हुरिया कितनी ही बार इस अजियत से गुजरी होगी, उसने दुख से सोचा। या अल्लाह, कोई राह निकाल दे, बेशक तू हर शय पर कादर है। उसने रोते हुए हाथ खला में उठाए। रात की खामोशी अपने अरूज पर थी। अंधेरे ने हर चीज को अपनी लपेट में ले रखा था। उस गहरी खामोशी को किसी नसवानी आवाज ने तोड़ा और साथ ही आग के दहकते शोलों ने अंधेरे को चीरते हुए कमरे को कुछ हद तक रोशन कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ती हुई उस कमरे तक के अंदर आ गई। कमरे के दरमियान में काले लिबास में मलबूस एक औरत अपने गिर्द एक गोल दायरा खींचे उसके अंदर बैठी हुई थी और आंखें बंद किए मुसलसल कुछ पड़े जा रही थी। उसके आसपास बहुत सा सामान रखा हुआ था जिसमें लीमू, मिर्चें, चाकू, काले और लाल रंग के धागे, पानी, सुइयां, कीले, पुतले जिसके अंदर सुइयां घुसी हुई थी, बड़े बड़े थाल जो ढके हुए रखे थे। हुरिया ने आगे बढ़कर आहिस्ता से एक थाल पर से कपड़ा हटा दिया। थाल के अंदर कुछ लड़के और लड़कियों की तस्वीरें रखी हुई थीं, जिनमें से 3 लोगों को वो जानती थी। एक तस्वीर हाशिम और उसकी थी जो बीट से कटी हुई थी और एक तस्वीर अरीशा की थी। बाकी तस्वीरें जो थाल के अंदर मौजूद थी उनसे वो नावाकिफ थी। हुरिया ने आगे बढ़कर थोड़े दूसरे थाल से कपड़ा हटाना चाहा लेकिन उससे पहले ही सामने बैठी उस औरत ने हुरिया का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से उसे घूरने लगी। हुरिया उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी लेकिन उसकी गिरफ्त काफी मजबूत थी। उसने दांत पीसते हुए हुरिया की कलाइयां मरोड़ दी। हुरिया के हाथों में मौजूद चूड़ियां टूट टूट कर उसकी कलाइयों में घुस गईं और कलाइयों से खून रसने लगा। हुरिया चौंक कर उठकर बैठ गई। ख्वाब था। वो गहरी गहरी सांसें लेती हुई बड़बड़ाई। वो अभी खुद को इस कैफियत से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी कि जब उसे अचानक अपनी कलाइयों में दर्द महसूस हुआ। उसने अपनी दोनों कलाइयां आगे की तो वो खून में हो रही थी। कांच की चूड़ियां जो उसे कल रात हाशिम ने दी थी वो उसके हाथ के गोश्त के अंदर प्यूसत हो चुकी थी। उसके दिल हल्क से एक दिल खराश चीख निकली, क्या हुआ हूर? हाशिम जो अभी फ्रेश होकर बाहर निकला था हुरिया की आवाज सुनकर दौड़कर उसके पास आया। हाशिम, ये दो देखें। उसने खौफ से कांपते हुए अपनी बात मुकम्मल की। क्या? वो परेशानी से कहता हुआ उसके पास बैठ गया। ये हुरिया के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए।
कुछ देर पहले जो हालत उसने अपने हाथों की देखी थी, अब वो बिल्कुल बरअक्स थी। उसकी कलाई पर एक खून की छींट भी नहीं थी और ना ही कोई चूड़ी उसके गोश्त के अंदर प्यूसत थी। वो हैरानी से अपने हाथों को देखने लगी। कुछ नहीं हुआ, ठीक है सब कुछ। हाशिम ने उसका हाथ थामा। ये सब क्या देखा मैंने? हूरिया उलझ कर रह गई। कहाँ खो गई? जाओ फ्रेश हो जाओ। हाशिम ने उसकी आंखों के सामने हाथ लहराया। हूरिया सर आसमात में हिलाती हुई उठ गई। अरीशा सोकर उठी तो वो दानिश को अपना मुंतजिर पाया। गुड मॉर्निंग, अरीशा ने अंगड़ाई ली। क्या महसूस कर रही हो अब? दानिश बेड के करीब कुर्सी पर बैठ गया। बहुत अच्छा, अम्मी कहाँ हैं? उसने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। अभी फ्रेश होने गई हैं, दानिश ने जवाब दिया। अच्छा, अरीशा ने आंखें मसली। तुम्हारी गर्दन पर यह निशान कैसा है? दानिश ने भुएं सकेड़ी। कौन सा? अरीशा ने अपनी गर्दन पर हाथ रखा। ये देखो। दानिश ने अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करके मोबाइल उसकी जानब बढ़ाया। अरीशा ने मोबाइल पकड़ते हुए कैमरे में देखा तो वाकई उसकी गर्दन पर काले काले निशान पड़े हुए थे। अरीशा के जहन में कल रात वाला वाकया घूम गया। पता नहीं, वो मोबाइल वापस उसे देती हुई बोली। कल तक तो नहीं थे, दानिश ने तवक्कुफ के बाद कहा। हाँ, पता नहीं, कल तक तो नहीं थे, अरीशा अनजान बनी। डॉक्टर को दिखा देना एक बार, कभी बाद में कोई मसला ना बन जाए, दानिश ने मशवरा दिया। हाँ ठीक कह रहे हो, अरीशा ने उसके हाँ में हाँ मिलाई। हूरिया फ्रेश होकर बाहर आई तो हाशिम अपने जूते पहन रहा था। हाशिम, आप आज मुझे घर पर छोड़ देंगे? अम्मी भी बुला रही हैं। जब से रुखसत हुई हैं मैं एक बार भी घर नहीं गई, और फिर शाम तक अरीशा भी घर आ जाएगी, मैं उससे भी मिल लूंगी। हूरिया ने अपने बाल खुश्क करते हुए कहा। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाशिम मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गया। हाशिम ने आज अस्पताल से ऑफ लिया था। हूरिया को घर के छोड़ने के बाद उसका इरादा राहील और निमरा की तरफ जाने का था। रास्ते में उसने असद को कॉल की, जो खिलाफी तवक्का उसने उठा ली। हाशिम के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। उसने ब्लूटूथ ऑन करके मोबाइल सेट पर रख दिया। अस्सलामु अलैकुम। जी आप कौन? दूसरी तरफ से पूछा गया। वालेकुम अस्सलाम, मैं हाशिम। पहचाना? हाशिम ने नजरें सड़क पर मरकूज करते हुए पूछा। हाशिम? उसने बेयकीनी से कहा। हाँ, कैसा है तू? हाशिम ने खुशगवार लहजे में पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, तू सुना? असद ने खुश दिली से कहा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। कहाँ है अभी? कराची में, हाशिम ने पूछा। हाँ क्यों? असद ने सवाल किया। मैं राहील और निमरा की तरफ जा रहा हूँ, एड्रेस सेंड करता हूँ, तू भी वहां आ जा, फिर बात करते हैं, हाशिम ने कहा। अच्छा ठीक है, असद ने फौरन कहा। चल ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाशिम ने कॉल काट दी और उसे एड्रेस सेंड करने लगा। हाशिम निमरा के घर पहुंचा तो वहां असद को अपना मुंतजिर पाया। असद? हाशिम ने उसे अपनी तरफ मतवज्जा किया। हाशिम वो उसके करीब आता हुआ गले से लग गया। कैसा है तू? वो पुरजोश बोला। अल्हम्दुलिल्लाह। हाशिम मुस्कुराते हुए उससे अलग हुआ। निमरा को बताया है कि हम आ रहे हैं, असद ने इस्तफार किया। सरप्राइज, हाशिम ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़कर बेल बजाई। दूसरी बेल पर ही निमरा ने दरवाजा खोल दिया। हाशिम, असद? वो बेयकीनी से बोली। जी हाँ, अंदर नहीं बुलाओगी? असद ने मसनूई खफगी से पूछा। अरे नहीं, अंदर आओ ना। निमरा ने रास्ता छोड़ा। दोनों अंदर आ गए। राहील कहाँ है? असद ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। अंदर। निमरा ने फीकी मुस्कुराहट लबों पर सजाई और अंदर बढ़ गई। वो दोनों भी उसके पीछे अंदर की सिमत बढ़ गए। निमरा हाशिम और असद को राहील के पास ले आई। दोनों ने बेड पर लेटे राहील पर नजर डाली तो हैरान रह गए। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि वो राहील है। जर्द पड़ा हुआ चेहरा, आंखों के नीचे स्याह हल्के और जिस्म सूख कर कांटा हो रहा था। जो शख्स उनके ग्रुप में सबसे ज्यादा अपना ख्याल रखता था, अपने आप को संवार कर रखता था, वो कभी इस हाल को पहुंच जाएगा, उसके बारे में उनमें से किसी ने भी तसव्वुर भी नहीं किया था। राहील, हाशिम तड़प कर उसके करीब गया। अभी अभी ही सोया है। निमरा ने आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ रख दिया। कैसे हो गया ये सब? असद दुख से बोला। पता नहीं चला, क्या से क्या होता चला गया, निमरा नम लहजे में बोली। इलाज? डॉक्टर की समझ से बाहर है इसकी बीमारी, निमरा ने असद की बात काटते हुए बताया।
तुम दोनों बैठो, मैं आती हूँ, निम्रा ने ठहर कर कहा और कमरे से निकल गई। या अल्लाह रहम कर, असद ने राहील पर एक नज़र दौड़ाई। तू सुना, क्या कर रहा है आजकल, जॉब कैसी चल रही है? हाशिम ने इस्तफसार किया। कुछ नहीं, फारग हूँ फिलहाल। असद सोफे पर बैठ गया और उसकी नज़रें फर्श पर मरकूज थीं। क्यों? तू तो किसी इंटरनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था और तूने ये भी कहा था कि कुछ साल बाद तेरे बाहर जाने के भी चांसेस हैं। फिर क्या हुआ उसका? हाशिम को शॉक लगा। निकाल दिया उन लोगों ने मुझे, असद कुछ देर के तवक्कुफ के बाद बोला। मगर क्यों? हाशिम हैरानी से बोला। समझ नहीं आया कुछ भी, लेकिन बस अब सब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। असद कमज़ोर लहजे में गोया हुआ। चाय? इसी असना में निम्रा हाथ में ट्रे पकड़े कमरे में दाखिल हुई। शुक्रिया। दोनों ने मुस्कुराते हुए ट्रे से चाय के कप उठाए। निम्रा भी मुस्कुराती हुई चाय का एक कप लेकर असद के बराबर में बैठ गई। दादी कैसी हैं असद? निम्रा ने चाय का एक घूंट भरा। असद की दादी से एक वक्त में हाशिम और निम्रा काफ़ी क्लोज हुआ करते थे। नहीं नहीं, वो अब। असद ने आंखें बंद करते हुए गहरी सांस ली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, दोनों ने ज़ेरे लब कहा। कब, कैसे? निम्रा ने चाय का कप मेज़ पर रख दिया। घर में आग लग गई थी, मैं घर पर नहीं था। महल्ले वालों को जब पता चला और जब तक आग बुझाई गई, वो ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। उस दिन सब कुछ खत्म हो गया। मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स भी आग की नज़र हो गए और मेरी कुल कायनात, मेरी दादी, वो भी चली गई, मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर। असद ने दोनों आंखों पर हाथ रखते हुए खुद को रोने से बात रखा। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। हाशिम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आमीन, निम्रा और असद ने एक साथ कहा। उनको कुछ मालूम हो गया था, वो मुझे बताना चाहती थी, लेकिन वक़्त ने उन्हें मोहलत नहीं दी। असद ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा। क्या? निम्रा के बाद माथे पर बल पड़े। पिछले 2 सालों से वह बहुत कुछ अजीब होने लगा था। कभी जॉब में मसाइल हो रहे थे तो कभी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी। रोज कुछ ना कुछ हो रहा था। मेरी नज़र में ये सब नॉर्मल था, लेकिन दादी, उनको कुछ और ही नज़र आता था। तुम लोग तो उन्हें जानते थे, हर वक्त वह कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी। उनके मुताबिक ये सब नॉर्मल नहीं था। उन्होंने कई बार कोशिश की मुझे बताने की, लेकिन मैं हमेशा नज़रअंदाज कर रहा था उनकी बातों को। और फिर एक दिन वो चली गई, लेकिन उनके जाने के बाद मुझे समझ आ गया कि मुझे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था उन्हें। अब तो कुछ कुछ मुझे भी यकीन होने लगा है। राहील और निम्रा को देखकर जो बातें दादी कहती थी, वो सब कहीं ना कहीं दुरुस्त हैं। असद के लहजे में पछतावा था। समझे नहीं हम? हाशिम ने उलझ कर उसे देखा। हाशिम, क्या तुम्हारे साथ कुछ अजीब नहीं हो रहा है पिछले 2 सालों से? असद ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। हाशिम सोच में पड़ गया। एक पल को उसके जहन हुरिया के साथ होने वाले तमाम वाकयात घूम गए। तुम्हारी खामोशी गवाह है इस बात की कि कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें इल्म नहीं, तो ना बताओ। लेकिन ये बात तय है कि राहील की ये ना समझ में आने वाली बीमारी, दादी की यूं अचानक मौत, घर में यूं आग लग जाना और मेरे डॉक्यूमेंट्स का जल जाना, निम्रा का यूं दर दर की ठोकरें खाना और हमारे साथ किया हुआ ये तुम बेहतर जानते हो। लेकिन ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। हम चारों की जिंदगियों में होने वाले वाकयात का जिम्मेदार कोई एक ही इंसान है, और वो निगार है। असद ने आखिरी जुमला कदरे सख्ती से अदा किया। निगार? हाशिम ने चौंक कर असद को देखा। लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो असद? निम्रा हैरानी से बोली। तुम लोग भूल गए हो क्या उस दिन क्या हुआ था? असद ने बारी बारी दोनों को देखा। याद है, सब कुछ याद है, मगर वो बात इतनी बड़ी भी नहीं थी कि निगार इस हद तक चली जाए। हाशिम ने उसकी हमायत की। वो किसी हद तक भी जा सकती है। तुम्हें उसका पागलपन याद नहीं है क्या? वो एक जुनूनी लड़की थी। अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी हद तक भी चले जाने वालों में से थी वो। मुझे यकीन है कि वही है, और इन सब के पीछे भी उसी के पास ही वजह है, हम चारों को नुकसान पहुंचाने की। और दादी भी शायद यही बताना चाहती थी मुझे। तुम्हें याद नहीं किस तरह वो गायब हो गई थी 5 साल पहले? और तुम दोनों ने यह सोचा कभी
हमारे साथ सब कुछ एक साथ ही क्यों हुआ है? सोचा कभी? हम सब एक साथ ही क्यों इतनी परेशानियों में घिर गए हैं? गौर करो मेरी बात पर, सब कुछ साफ जाहिर है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम पर वार करने वाला शख्स एक है। तुम लोग मानो ना मानो, लेकिन मुझे यकीन है ये सब निगार कर रही है, असद ने पुरयकीन लहजे में कहा। हाशिम, असद शायद ठीक कह रहा है। तुम देखो ना, हमसे वो चीज छीन रही है जिससे हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत थी। असद से दादी को छीन लिया और उसकी जाब जिसको पाने के लिए उसने अपनी हर कोशिश की थी। मुझसे राहील को और राहील से उसका सब कुछ। निम्रा को कुछ कुछ असद की बातें समझ में आ रही थी। जरूर तुमसे भी वो हुरिया को छीनने की कोशिश कर रही होगी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, निम्रा ने अंदाजा लगाया। हाशिम ने चौंक कर दोनों को देखा। असद और निम्रा की बातों ने हाशिम को माजी में हुए वाक़यों पर गौर करने पर मजबूर कर दिया था। 5 साल पहले आई लव यू निगार, मैं मोहब्बत करने लगा हूं तुमसे। मुझे हर जगह बस तुम ही दिखाई देती हो। आंखें खोलता हूं तो तुम, आंखें बंद करता हूं तो तुम, हर जगह बस तुम ही दिखाई देती हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?